भैया एक काम करो, ये सीटी ना हमें ही दे दो, हम ही बजा देते हैं, थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये कि जब हमने ये देखा कि दो लोग पिछले 1 घंटे से ये सारी चीजें होते हुए देखते होने के बावजूद भी वही किया जो बाकी लोग कर रहे थे, हमने क्या किया वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनते रहिए आज की इस पॉडकास्ट को। हम आपको आगे की स्टोरी के साथ एक मजेदार सी रेसिपी भी शेयर करेंगे। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम दिलन? हम अपने श्रोताओं को एक कहानी बता रहे थे एंड दिस स्टोरी स्टार्ट्स इन अ मॉल। या करेक्ट। एक्चुअली ना क्या हुआ कि कल ही हम एक मॉल गए थे और क्योंकि संडे का दिन था और हॉलीडे सीजन भी चल रहा है, भीड़ तो ऐसी कि आप ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले सकते, तो शॉपिंग तो दूर की बात है। So we thought of sitting in the courtyard of the mall, and after a long waiting and walking and searching for a place to sit, we got a bench to sit. और बैठने के बाद हमने एक लंबी सी सांस ली और एक दूसरे से कहा, जब तक हम डिनर के लिए नहीं जाते तब तक क्यों ना हम यहीं पर बैठें और लोगों को नोटिस करें। और बस खेल वहीं शुरू हुआ। जहां पर हम बैठे थे वहां बिल्कुल पास ही में थोड़ी सी ग्रीनरी थी और कुछ पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे जिसमें उन्होंने लाइट से थोड़ा डेकोरेट किया हुआ था। And we saw a lot of people going there to take selfies and pictures, and just like what we know, since it is the era of mobile phones, more than anything else, it is to get that one selfie that I can update the status on Facebook about. And there was this guard who came. He continuously kept telling people that you're not allowed to enter that area. But do you really think people actually care about it? No, not at all. और तो और अब मैं आपको बताऊंगी कि वहां हमने 4 तरीके के लोगों को देखा। पहले ये कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मना किया गया तो वो सीधे साधे बस आराम से चले गए वापस, फिर आए नहीं। दूसरे कुछ लोग ऐसे थे जो वापस जाकर आते और छुपते छुपाते मना करने के बावजूद भी वहां एंटर करते और मजे से सेल्फी, पिक्चर्स वगैरह वगैरह लेते। कुछ लोग तीसरी कैटेगरी में ऐसे थे जो सिक्योरिटी गार्ड को कहते कि तुम कौन होते हो हमसे ऐसी बात करने वाले। और चौथी कैटेगरी में तो वो जिसके बारे में हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया। So listeners, now I know we get some kind of enjoyment when we break the rule, and we've seen a lot of people just do it for the fun of doing it. And in fact, when we were small, we also used to break some of these very small rules that were set for ourselves. But the important piece here, or the important part here, is that we have to look at the cost at which we are breaking a rule, and then maybe take a decision on if it is really worthy enough to break that rule. Small things that we used to do when we were small, like for example, we would get into one of these orchards and pluck a few flowers or maybe pluck a few mangoes. These were some of the things that we used to do which did not harm anyone. But it is important for us to see if the rule that we are breaking actually harms somebody, and if it is really necessary for us to go and break that rule. And when we are grown up, it becomes all the more important that we look at all aspects and ensure that we are not breaking the rule. We are no more kids, but we are going to be examples for our kid. So it is important that we understand that breaking rule is not a choice. Now, some jobs are thankless, and I need to say that no matter what you do, the reward that you get is absolutely nothing. There is not even a thank you.
that somebody would say. And the job of this guard, this poor guard, was something like that. He kept running from one end to the other, asking people not to enter because it was a safety hazard there. And people should ideally have understood that it is a safety hazard. But no, people wanted to break the rule. They would get into these gardens, they would hold all of these lights that they were there, and they would click selfies. And this poor guard kept asking people not to get in there. So, as grown-ups, as mature people, let us become a little more responsible and understand that breaking rule is not a choice. हाँ, बिल्कुल सही बोला दिलीप। और गार्ड के नजरिए से देखें तो बेचारा वो कब कितनी देर से लोगों के पीछे भाग रहा था, और देखा जाए तो उसे तो उसके मालिक ने कहा होगा कि तुम्हें किसी भी हाल में उन्हें रोकना है, और जब वो रोकता है तो उसे सुनने को मिलता है। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो मुश्किल में वही पड़ता है। That is right. तो फिर दिलीप, बातें शातें तो बहुत हो गई, अब चले हम बनाए कुछ खाने के लिए। Let's get on to today's recipe then. तो आज की रेसिपी क्या है, आपको पता है? गट्टे की करी। Yeah, that's right. तो चलो बनाते हैं गट्टे की करी। सबसे पहले आप लिखिए कि गट्टे की करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। वैसे आपको पता होगा कि गट्टे की करी बेसिकली जो है राजस्थानी डिश है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हालांकि इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी खाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सामग्रियां लिख लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है गट्टा तैयार करना है। और गट्टा बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा वो है 1 कप बेसन, 1/4 टीस्पून जो है जीरा ले लेंगे, 1/4 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून धनिया सीड्स, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून पानी, 3 टेबलस्पून दही, 1 लीटर पानी जो है हमें चाहिए होगा गट्टा बॉईल करने के लिए। So first, look at the ingredients for making gatte ki curry, and the first thing is that the ingredients that we need to make gatta. So you will need 1 cup gram flour, 1/4 teaspoon cumin seeds, 1/4 teaspoon fennel seeds, 1/4 teaspoon carom seeds, 1/4 teaspoon coriander seeds, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon desi ghee, 1 tablespoon oil, 2 tablespoon water, 3 tablespoon curd, 1 liter water to boil gatta. और उसके बाद जो सामग्री हमें चाहिए होगा वो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 प्याज, 2 से 3 टमाटर, 1/4 कप दही लगभग 4 टेबलस्पून, 3 हरी मिर्ची लेंगे, अदरक जो है 1/2 इंच ले लेंगे हम, 2 से 3 जो है लहसुन के पीसेस ले लेंगे, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून जो है हम रोस्ट किया हुआ मेथी पत्ता जो होता है वो लेंगे, और 2 टीस्पून जो है नमक लेंगे। So the ingredients for making the gravy are 2 onions, 2 to 3 tomatoes, 1/4 cup curd, which is about 4 tablespoon, 3 green chilies, 1/2 inch ginger, 2 to 3 garlic pods, 1 teaspoon red chili powder, 2 teaspoon coriander powder, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon fenugreek leaves roasted, 2 teaspoon salt. और उसके बाद जो है हमें कुछ सामग्रियां चाहिए होंगी तड़का लगाने के लिए। और तड़का लगाने के लिए जो है हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 पिंच हिंग, 1/4 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, और 1/4 टीस्पून जो है सौंफ और जीरा को जो है यहाँ पर हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। So for the tempering, we'll need 2 tablespoon desi ghee, a pinch of asafoetida, 1/4 teaspoon Kashmiri red chili powder, 1/4 teaspoon cumin seeds crushed,
and 1/4 teaspoon fennel seeds crushed. तो फिर चलिए और बनाना शुरू करते हैं हमारे गट्टे की करी को। तो गट्टे की करी बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम सिलवट्टे में जो है जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और धनिया डालकर इन सारी चीजों को थोड़ा सा रफली जो है क्रश कर लेंगे और उसे साइड रखें। उसके बाद एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें हम डालेंगे बेसन, नमक और जो क्रश किए हुए मसाले हमने साइड रखे हैं वो डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, देसी घी, तेल और अंत में दही। और इन सारी चीजों को डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे। और इस पॉइंट पे जो है आप आकर पानी बिल्कुल ना मिलाएं, पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं, क्योंकि पानी जो है हम उस जितनी भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी ज्यादा पानी हो गया तो आटा हमारा अच्छा नहीं गूंदेगा। और जब इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लेंगे तो उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वाटर, और वो भी आपको ध्यान रखना है आप एकदम से 2 टेबलस्पून पानी ना डालें, हो सकता है उससे कम पानी में भी जरूरत पूरी हो जाए आपकी। तो पानी डालने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना बेसन जो है वो पानी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाता है। तो इसीलिए इसे साइड रखने से क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद जब इसे गूंदेंगे तो उसका टेक्सचर अच्छा आएगा, आटा अच्छा गूंदेगा। और उसके बाद जब है थोड़ी देर के बाद आप उस बेसन को वापस अच्छे से गूंदें और थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर तेल उसमें स्प्रिंकल करें और इसे इतने अच्छे से गूंदना है। बेसिकली आपको इसे मसल कर आटे को गूंदना है, तभी ये जो गट्टा आपका है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। और इसे तब तक गूंदना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और बस उसके बाद बारी है इसे बॉईल करने की। हम 1 लीटर पानी जो है गैस स्टव पर बॉईल करने रख देंगे और उसके बाद हम इन गट्टों को जो है तकरीबन 4 से 5 इक्वल पोर्शन में आप डिवाइड कर लें। जितने भी पोर्शन बनते हैं आप डिवाइड कर लें और उसके बाद उसे तकरीबन 10 इंच के सिलिंड्रिकल रोल में उसे बना लें। और उसके बाद इस रोल किए हुए गट्टे को जो है हम उबलते हुए पानी में डालेंगे। ध्यान रहे कि पानी जो है बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए और जब तक आपका गट्टा पकता है पानी का आंच जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो आपके गट्टे अच्छे से पकेंगे नहीं और वो फ्लोट होकर ऊपर नहीं आएंगे। और जब फ्लोट होकर गट्टा आपका ऊपर आ जाता है तभी हम समझ सकते हैं कि अरे गट्टा ये तो बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल हल्का है। तो बस उसके बाद हमारा गट्टा तैयार हो गया। जब आप देखेंगे कि ये फ्लोट कर रहा है तो आप गैस बंद कर दें और इन गट्टों को जो है प्लेट में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे आप छोटे छोटे शेप में काट लें। और अब बारी आती है इन गट्टों को तलने की और उसके लिए आपको जो है एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम करना है और इन सारे गट्टों को चाहे तो बैचेस में या फिर एक ही साथ आप डालकर, डिपेंड करता है आप उसमें कितना तेल डालते हैं कढ़ाई में, इनको फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि गैस जो है हमेशा हाई फ्लेम पर होना चाहिए जब आप गट्टा फ्राई करते हैं। और एक और चीज श्रोताओं, गट्टा जो है फ्राई करना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग गट्टा बगैर फ्राई किए ही डालते हैं करी में और कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि इसे फ्राई करके डालूं। Okay, so first of all, in a mortar and pestle, add cumin seeds, fennel seeds, carom seeds and coriander seeds and roughly crush them and set them aside. Now take a large mixing bowl and add gram flour, salt, crushed masala, turmeric powder, red chili powder, desi ghee, oil and curd. Now the crushed masala is the masala that we just now crushed in the mortar and pestle. Now mix everything well, but please ensure that you're not adding water at this point. Once you mixed everything well, add about 2 tablespoons of water if required, and that entirely depends upon how much water is required. Please don't add all the 2 tablespoons together. Keep adding it little by little and only add as much as is required. And mix them well and then set aside for some time so that the gram flour absorbs water, because gram flour tends to absorb water. After some time, add little oil to it and mix it well until smooth. Now this is where you can ensure that your gatta is smooth. You need to keep kneading the dough well by pressing it towards the base of the vessel until it is smooth.
because this is one of the most important step in making the gatta curry. Then boil 1 liter water in a pan. And in the meanwhile, what you can do is divide the dough into 4 to 6 small portions and roll them into about 10-inch long thin cylindrical rolls. Then add these rolls to the boiling water and boil for about 10 to 15 minutes on a medium flame. Now ensure that the water should be boiling when you're dropping the gatta into the water. Take it out on a plate when it is cooked. You will know if the gatta is cooked when you start seeing that the gatta is floating on top of the water. So once that happens, take this gatta out into a plate and cut it into a shape. Then heat oil in a pan and deep fry the gattas on high flame for about 2 to 3 minutes. Now if you want to fry it or not, entirely depends upon you. Because we prefer frying it, there are a lot of people who prefer adding it just like that. So that's completely your choice. तो फिर चलिए, हमारे गट्टे तो तैयार हो गए। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के लिए जो है हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें हम डालेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और इन सारी चीजों का प्यूरी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद एक बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रोस्टेड कस्तूरी मेथी और साथ ही में दही। इन सारी चीजों को डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और उसे साइड रखें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करें और आंच को मीडियम में ही रखें और हम डालेंगे उसमें कटे हुए प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है और उसे हम भूरा होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि प्याज हल्का भूरा हो गया है, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो थोड़ा अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने अभी तैयार किया और नमक। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद तुरंत बाद ही आप नमक डालें ताकि टोमेटो प्यूरी जो है अच्छे से पक जाए। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल जो है साइड छोड़ना ना शुरू कर दे। और बस उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कर्ड्स का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से स्टर करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। जैसे ही आप कर्ड डालें आप इसे स्टर करते रहें क्योंकि नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा। So in order to make the gravy, in a blender add tomato, ginger, garlic, green chilies and make a puree out of it. Then take a small bowl and add the curd to it and then add red chili powder, turmeric powder, coriander powder and roasted kasturi methi. Then give it a nice mix and set it aside. Then heat oil in a medium flame and add the chopped onion and fry until the onion is golden brown. Once the onion gets brown in color, add little water so that the onion gets cooked well. Then add the tomato puree and salt and fry until the oil gets separated and you get a nice color. Now add the curd mixture we made and keep on stirring so that the curd doesn't curdle, because that is something that you need to keep in mind. उसके बाद जो है हम इस मिक्सचर को अच्छे से फ्राई करेंगे कर्ड डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, और या फिर जब तक आप देखते हैं कि फिर से तेल जो है साइड ना छोड़ने लग जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो थोड़ा पानी, और हम पानी वही डालेंगे जो कि हमने गट्टा बॉईल करने के लिए यूज किया है। आप ध्यान रखें कि पानी जो है वो फेंके ना, उसी को यूज करें इसमें ग्रेवी बनाने के लिए। और पानी डालने के बाद जो है इसे बॉईल करें अच्छे से। और जब आप देखेंगे कि ये पानी बॉईल हो गया है तब हमें इसमें डालना है फ्राई किया हुआ गट्टा, और उसके बाद हमें इसे कवर कर देना है और धीमी आंच पर तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। हमारा गट्टा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसमें आप डालें गरम मसाला और एक अच्छा सा मिक्स करें, और उसके बाद जो है हम गैस को बंद कर देंगे। और अब बारी है तड़का डालने की। और तड़का डालने के लिए हम एक छोटा सा पैन लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे घी, और जब घी गर्म हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे और उसमें हम डालेंगे हींग, और हमारे जो क्रश किए हुए जीरा और सौंफ है उसे हम डालेंगे, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। और इस टेम्परिंग को जो है हम गट्टा करी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस लीजिए, आपका गट्टा करी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप सर्व करें प्लेन राइस के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। So on to the final step.
fry the mixture for about 5 to 6 minutes or until the oil gets separated again. Then add the remaining water we've kept after boiling the gattas and let it boil. Now once it gets boiled, add the fried gattas to it, cover and cook on low flame for about 5 to 6 minutes. Then add garam masala to it and give it a nice mix. And once that is done, just switch off the stove. Then in order for the tempering, heat ghee in a small pan, and once the ghee is hot, just switch off the gas and add asafoetida, the crushed cumin seeds and crushed fennel seeds to it, and a little Kashmiri red chili powder. Then add this tempering onto the gatta curry. And your gatta curry is ready to be served. You can serve this curry along with plain rice, chapati or parathas. तो फिर श्रोताओं, बारी है आज के टिप्स की। और आज का पहला टिप्स ये है कि जो बॉईल किया हुआ वाटर है गट्टे का, उसे आप स्टोर करके जरूर रखें, उससे ही आप ग्रेवी बनाएं। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गट्टा डालें बॉईल करने के लिए, पानी बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए। इनफैक्ट बॉईल होते हुए पानी में ही आपको गट्टा डालना है, तभी आपके गट्टे जो है अच्छे से पकेंगे। और तीसरा टिप ये है कि आटे को जो आप गूंदेंगे वो बिल्कुल मसल कर अच्छे से गूंदना है, तभी आपका गट्टा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और हालांकि आपने इसमें देसी घी डाला है तो गट्टा वैसे भी सॉफ्ट बनेगा। और क्योंकि मैं ज्यादा अवॉइड करती हूँ ये बेकिंग सोडा वगैरह यूज करना, तो इसीलिए आप इसमें घी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका गट्टा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। So, simple 3 tips for this recipe. Ensure that you're not throwing the water in which the gatta was boiled away, because that is the water you will be using for the gravy. And also keep in mind that you need to boil the gattas in boiling water, which means that you need to add the gatta into boiling water. Don't add it into normal water and let it boil. And finally, when you're kneading the dough, ensure that you're using a lot of pressure to knead it, to press it against the base of the pan so that the dough is kneaded well. तो बस श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हमने काफी बातें की दिलीप आज, और कुछ रेसिपी भी शायद बहुत ज्यादा लंबी थी, पर आई थिंक मुझे पता है कि एक बार आप अगर ये करी बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमने इतना मेहनत किया, बट उसका आउटकम जो है वो बहुत ही अच्छा निकला। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। इसे आप चपाती और पराठे के साथ खाएंगे तो आपके मुंह से बस वाव निकलेगा। That is right. This is a very tasty recipe and you should go ahead and try this. So that is all that we have for this week. Don't forget to subscribe to the Taste of India podcast. You can visit thetasteofindia.com for all the show notes and the printable recipe card. Don't forget to give us your ratings and your reviews on iTunes, because your ratings helps in the overall ranking of the show. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Before we leave, just want to remind you that we are very near to our 100th episode, and if you think you have a recipe that needs to be featured, just send in your recipe to us. We'll pick one recipe and we'll feature you on the podcast. So start sending us your recipes. The best recipe will get published on thetasteofindia.com and you'll be featured on our podcast. So until the next week, when we come back with another tasty recipe, keep listening to our podcast on all the major podcast platforms, including Google Podcasts, iTunes, Spotify, and Saavn. We are also there on Audio Boom. So let us know your thoughts about our podcast and the blog post. And we'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, you have a Merry Christmas and a very happy New Year. Enjoy your holidays. That is it from the two of us. See you all the next week.